اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ حسب سابق آج بھی ہمارا ٹاپک موسم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، سیزن کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ ہمارے پاس پاکستان کے ماہر ناز ہومیوپیتھی ڈاکٹر موجود ہیں اور آج ان کے تجربات یہاں پہ شیئر کریں گے، ان کے کلینکل ایکسپیریمنٹ شیئر کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی پرابلم ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، بڑے غور سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ ہمارا ٹاپک ہے نمونیا۔ نمونیا سالوں سے، صدیوں سے ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے ہماری عوام کا سامنا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، چاہے موسم گرمی کا ہو، سردی کا ہو، نمونیا کی ایک موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر اس کا علاج اچھا ہو یا بہتر ہو یا نہ ہو، اس میں سے گزرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ہومیوپیتھی اینڈ صحت میں کہ نمونیا میں ہومیوپیتھی کی جو ادویات ہیں وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ کیا نمونیا کے مرض میں ہومیوپیتھی کا علاج کروایا جا سکتا ہے؟ کیا ہومیوپیتھی نمونیا میں بہترین رزلٹ دیتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم آج آپ سے بات کریں گے۔ تو میں تعارف کرواتا ہوں اپنے پینل کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر سجاد قاضی صاحب۔ آپ صدر ہیں کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان کے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے کہ آپ پاکستان کی ایک ملک گیر جو ایک منظم تنظیم ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی، جو کہ ہومیوپیتھی اور ہومیوپیتھ کی فلاح کے لیے پروموشن کے لیے کام کر رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان کے صدر نامزد ہوئے ہیں، تو بہت بہت مبارک ہمارے ٹی وی چینل کی طرف سے، کمیونٹی آف ہومیوپیتھ کی طرف سے، اور پاکستان کے تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہومیوپیتھی اور ہومیوپیتھس کی پروموشن کے لیے انشاءاللہ تعالی دل و جان سے کام کریں گے۔ آپ کے ساتھ ہیں سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، بڑی کیوٹ سی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سائمہ اقبال صاحبہ۔ ابھی عرصہ 10 سال سے کم و بیش ہومیوپیتھی کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو آپ نائب صدر ہیں CUH ضلع لاہور کی۔ ان کے ساتھ ہماری سینئر ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عطیہ اقبال صاحبہ۔ ڈاکٹر عطیہ اقبال صاحبہ شہر لاہور میں پچھلے 25 سال سے اپنی سروسز جو ہیں وہ انجام دے رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا بہت ہی وسیع تجربہ ہے ہومیوپیتھی کے میدان میں۔ تو ان کا بہت شکریہ کہ آج ہماری دعوت پہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے آج کے اس ہیلتھ ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں تشریف لائی ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترم ڈاکٹر سجاد قاضی صاحب سے کہ آج کا جو ٹاپک ہم نے منتخب کیا تھا، اس کو فینومینیا، نمونیا یہ کہتے ہیں، اور یہ بچوں، بوڑھوں، جوانوں، تقریباً سبھی لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر بچے اور بوڑھے ہیں جن میں شاید وائٹل فورس کی کمی ہوتی ہے، تو وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے تجربات کی روح میں یہ بتائیں کہ نمونیا کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اسپیشل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی کمیونٹی آف ہومیوپیتھی کا، ہومیوپیتھ ڈاکٹر اسپیشلی ان کی اور ویورز کا جو ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ اور میری پوری کوشش ہوگی، اس سے پہلے بھی تھی کہ ہومیوپیتھی کے لیے کام کیا جائے، اور یہ مجھے کوئی الف تو مجھ سے نہیں لے رہا، لیکن میں الفن کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پچھلے 22 سالوں میں کبھی بھی اس کے ساتھ مکسوپیتھی نہیں کی، اس چیز کا میں الف دے رہا ہوں، تو پیور ہومیوپیتھی کرتے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ نمونیا اصل میں یہ انفیکشن آف لنگز ہوتے ہیں، اور اس انفیکشن کی کاز ہوتے ہیں بیکٹیریا، وائرس اور فنگل انفیکشن۔ جب یہ انفیکشن ہو جاتی ہے تو جو اس کے جو ہمارے ایلوولائز ہوتی ہیں اس میں سے جو فلوئڈ نکلتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر کنجیشنز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے ایک
इब्तदा होती है, फिर सिम्टम के तौर पर खांसी शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ बुखार होगा, लेकिन बुखार में शिद्दत होगी और शदीद सर्दी हो जिसको शिवरिंग कहते हैं, कांबा कहते हैं, और उसको पसीना भी कसरत से आएगा। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बड़ी मुश्किल से सांस, तंगी के साथ वो सांस लेता है। फिर उसको ये कैफियत होती है कि चेस्ट पेन मस्ट होता है, स्पेशली जब वो खांसता है या लंबा सांस लेने की कोशिश करता है तो उस वक्त उसको ये बड़ा सीवियर पेन होता है। उसके अलावा जब ये कंडीशंस होती है तो वो जो रैपिड शैलो ब्रीदिंग होती है कि बस जिसको आंपना हम कह सकते हैं, तो ये उसके अलामात होती हैं। इन सूरतों में फिर पेशेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर इनमें से कोई भी अलामत हो, ये नहीं कि पांचों इकट्ठी हो तो फिर जाए, कोई एक भी हो तो समझे कि डेंजरस, कि वो डॉक्टर को कंसल्ट करे, उसके पास जाए। और डॉक्टर भी होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथ और क्वालिफाइड भी हो। क्वालिफाइड तो ना मस्ट है, कोई भी हो, चाहे एलोपैथ है, हकीम है या MBBS है, क्वालिफाइड तो ना मस्ट है। अताई डॉक्टर के पास जाना तो अपने साथ एक ज्यादती है। जी, तो डॉक्टर साहब, इकबाल साहब, आप ये बताएं कि जैसा डॉक्टर साहब ने, सजाद कारी साहब ने ये बताया है कि नमूनिया की अलामात हैं, तो आपकी नज़र में भी यही अलामात हैं नमूनिया? हाँ जी, ये भी एक लंग डिजीज है जो लंग्स के इन्फेक्शन होने पे होता है। बुखार, खांसी होता है सबसे पहले, फिर इसके साथ साथ बुखार होता है, फिर ये शिवरिंग होती है, स्वेटिंग होती है, और फिर बुखार में झटके वगैरह होते हैं, साथ नोजिया भी होता है और मतली वगैरह भी होती है, और सांस में बड़ी दुश्वारी होती है, सांस का इशू भी। हाँ जी, सांस भी लेने में। अच्छा डॉक्टर इकबाल साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अब आप बताएं कि अलामात क्या है नमूनिया की, यानी कि सेम वही क्वेश्चन में, नमूनिया क्या है और इसकी सिम्टम्स, जी सबसे पहले इसके अलावा और क्या क्या होती है? जी सबसे पहले तो मैं स्पेशल टीवी का शुक्रिया अदा करती हूँ, और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। तो एक्चुअली नमूनिया पे हम बात कर रहे हैं। नमूनिया एक्चुअली फेफड़ों का इन्फेक्शन है जो अमूमन सर्दियों में डायग्नोस होता है। नहीं, गर्मियों में इन्फेक्शन तो होती है, लेकिन डायग्नोस अमूमन सर्दियों में। गर्मियों में बहुत नमूनिया होता है, गर्मी ये तो इन्फेक्शन वायरल है। हाँ जी, कभी भी हो सकता है। हाँ जी, किसी मौसम में भी हो, किसी मौसम में भी हो जाता है। नजला होता है जिसपे लोग तवज्जो नहीं करते कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बजाय ठीक होने के ज्यादा हो जाता है और सांस की छोटी नालियों में गिरने लग जाता है, वो जिससे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खांसी, बुखार और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। जो खांसी है ये ज्यादा रेशे वाली होती है? ज्यादा रेशे वाली होती है खांसी, और सांस में दुश्वारी आ जाती है, सीने में दर्द होने लग जाता है। अक्सर देखें कि फिर वो नेबुलाइजिंग की तरफ जाते हैं, बिल्कुल नेबुलाइज करते हैं, लेकिन हमारी पैथी में इसका इलाज बहुत जल्दी हो जाता है। आप सिर्फ ये बताएं कि पूरा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा कि सांस की प्रॉब्लम जब होती है तो होम्योपैथी की कौन सी दवाई है जो सबसे बेहतर आप लोग यूज करते हैं अपने क्लिनिक पे? फास्फोरस है, ब्रायूनी है, एंटमटार्ट है और लाइकोपोडियम है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उसकी बेस में ट्यूबरकुलोनियम मैं आपने तो पूरे नमूने की सारी दवाइयां बता दी हैं। जी जी, मैंने सिर्फ एक पूछा था कि जैसे हमारी दवाई कार्बोविज है, सांस में जो है वो आसानी के लिए, इससे बड़ी एक दुनिया तिब की एक और बड़ी अहम, जब ऑक्सीजन कम हो रही होती है तो कार्बोविज, वो कौन सी दवाई आपकी ज़हन में आ रही है? बहुत बड़ी दवाई है सांस के लिए, सांस की तंगी के लिए आ रही है। कार्बोवेज अच्छी, कार्बोवेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। स्पीडोस्पर्मा
स्पीडोस्पर्मा जो है वो बड़ी टॉप की मेडिसिन बहुत है। टॉप की मेडिसिन आप यूज करती हैं आपके क्लिनिक जी में? बिल्कुल करते तो हैं। वो एक बहुत अच्छी बलाटा दवाई है। बहुत अच्छी मेडिसिन। वो बलाटा बिल्कुल वो तो जी। दमे में चली जाती है ना जी, जी। पीछे। हम तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक ऐसा ही है ना हाँ। कि तो एस्थमा ये- के मरीजों को भी हाँ। रिलीफ मिलता है बलाटा से। तो आजकल फास्फोरस आपके से। क्लिनिक पे कैसे मरीज आ रहे हैं निमोनिया जी के? बिल्कुल आ रहे तो हैं। क्या क्या अलामत लेके आते हैं? कोई एक आती हैं या सारी इकट्ठी अलामत भी जी आ रही बस कुछ तो टेस्ट करवा के आते हैं। अच्छा। एक्सरे में पैकेज देखे जा सकते हैं कि वो नमूने वाले मरीज के सपोर्ट लंग्स में पानी के निशान होते हैं। यानी कि एक्सरे स्पॉटिंग से आप देख जी। लेते हैं कि जी। इनके लंग्स जो है वो जी। ठीक नहीं है। जी, इसके अलावा और कौन सी इन्फेक्टेड है जी। और कौन सा सिम्टम आजकल आम आ रहा है जो आपके पास मरीज आते हैं? खांसी है, दर्द वाली अच्छा। खांसी, खांसी में दर्द कहाँ पे होता है? सीने में दर्द Chest होता में। है और बहुत ज्यादा बुखार बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप इसमें थोड़ा सा और इजाफा करें कि एक पेशेंट आपके पास आया है कि उसको बुखार भी है और उसको खांसी है, तो और खांसी के साथ फिर आप अलामात में क्या क्या पूछते हैं आगे? कैसे आप डायग्नोज करते हैं कि ये हम निमोनिया उसके वाला सबसे मरीज पहले तो उसका टेस्ट करवाएंगे सीबीसी टेस्ट से, यूरिन है? वो टेस्ट तो से। है कि टेस्ट हुआ, सैंपल गया, लेकिन हाँ। वक्ती तौर पे पेशेंट आया तो सिम्टम लेने हैं आपने। सिम्टम आपको बताया यही कि बुखार है या उसका बलगम है या खांसी दो ज्यादा चीजें है। लेके आया। हाँ जी, आपके पास आया कि खांसी है, बुखार है। बुखार है। उसके बाद आप तीसरी और कौन सी फिर पूछेंगे कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, जैसे आपको आपका माइंड जो है वो क्लैरिफाइड हो कि इनको निमोनिया की शिकायत है। उसके लंग्स सीने में दर्द होगा और वो तो पूछेंगे ना आप पूछेंगे। हाँ जी, कि आपको और इसके अलावा और है, सांस में कैसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये सांस इस में तरह से दुश्वारी आपको- होगी उसके। यानी कि अगर उसमें सांस में दुश्वारी है, हाँ जी, यानी सांस में फिर आप दुश्वारी होगी। समझेंगे कि अब ये मरीज हाँ है। जी, तो अच्छा डॉक्टर उसका साहब, रंग नीला पड़ जाएगा कुछ ऐसे हाँ, खांसी ये करते वक्त भी। कलर हाँ जी, आप इसमें रोशनी डालें कि ये निमोनिया को निमोनिया क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है, और फिर इसमें आप आ जाएं कि ये जो क्या निमोनिया एक से दूसरे बंदे को भी होता है कन्वर्ट, ऐसा है? जी, मैं सॉरी आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं असल में ये मैंने मैं इसलिए अपनी बहन थोड़ा सा डॉक्टर बार बार साहब- पूछ रहा हूँ कि क्लियर हो जाए हाँ जी, मेरी जो मेरे नाजरीन के लिए, कि उनको फौरन पता हो कि आज की इस गुफ्तगू के बाद कि निमोनिया क्या होता है, तो हमें उसका क्या करना है। मैं अपनी इस बहन की डॉक्टर साहबा की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता हूँ कि जो बलगम आता है उसका कलर जरूर होगा, या तो कई किस्म का होगा ना। येलो होगा, जी ग्रीनिश होगा, और जब और सीवियर अटैक होगा उसका तो उसमें ब्लड भी होगा उसमें। और ये गर्मियों में भी हो सकता है, सर्दी में तो वहाँ भी मौसम का जैसे गर्म जिसम बहुत गर्म है, बहुत ठंडा पानी पी लिया है, या बहुत कूलिंग वाली जगह ऐसी लगे तो उसके सामने बैठ के तो वो बॉडी टेम्परेचर जो है ना इम्यूनिटी को मैच नहीं करती, इसलिए उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। और कोई भी वायरस उस वक्त स्पेशली जैसे अभी उन्होंने कहा कि जहाँ पर ऑलरेडी नज़ला जुकाम की किसी वजह से इन्फेक्शन है ना, तो वहाँ पर एक स्टेफोलोकस ऑरियस वायरस है, ये फौरी तौर पर वहाँ अटैक करता है। वैसे तो इसकी 3-4 वायरस में उनकी तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन जहाँ पर फ्लू नज़ला जुकाम की वजह से है तो ये वायरस फौरी तौर पर वहाँ अटैक करेगा तो निमोनिया हो जाएगा। अब उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ कि खुल के बताया निमोनिया के बारे में। निमोनिया में तो इसके जो काजेज में आम जनरली पहले तो सर्दी, जिसको आम लोग ये समझते हैं कि मुझे सर्दी लग गई है फर्स्ट स्टेज पर, उनको पता नहीं चलता कि मुझे निमोनिया हो गया, या किसी को भी नहीं पता चलता, वो समझते हैं कि सर्दी के साथ मुझे बुखार हो गया। अगर जब भी किसी को बुखार के साथ शदीद सर्दी महसूस हो तो इसको इग्नोर ना करें कि जी मैं सिर्फ आप पैनाडॉल इस्तेमाल कर लूँ घर पर, ये ना करें। उसको चाहिए कि होम्योपैथ के पास है या एलोपैथ की, जिसके पास, यहाँ पर मैं उसको ये बाउंड नहीं करता। वो तो आजाद है ना इलाज करवाने, तो हम कहते हैं कि हम भी हैं, हम हैं, हमारा कहते हैं होम्योपैथी भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफी इलाज मौजूद है। ये उसकी एक फर्स्ट स्टेज होती है, उसको कह सकते हैं कि अभी निमोनिया के चांसेस हैं। जरूरी नहीं है कि हर शिवरिंग वाले बुखार में निमोनिया हो, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक उसकी इंडिकेशन होती है, इंडिकेटर्स है कि ये आपको निमोनिया
हो सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, आपका सवाल था कि इसको निमोनिया क्यों कहते हैं। इसका जो वायरस है, इधर खुल के बयान हो जाए। उसका जो वायरस है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वहां से ही इसको निमोनिया कहते हैं। उस वायरस के नाम पर ही इसका नाम रखा है कि निमोनिया, यानी कि उस वायरस की उसके नाम पर बुनियाद पे इस बीमारी का नाम। पूरा नाम तो उसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लेकिन इसको निमोनिया ही कहते हैं। इसका सबसे, जिस वजह से ये आम तौर पर हर कोई इसको निमोनिया कहते हैं। फिर दूसरा इसका वायरस आ जाता है हेमामेलस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसकी वजह से आम तौर पर अडल्ट को, जो नौजवान लोग होते हैं, उनको अटैक ज़्यादा होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये किसी भी एज के इंसान को हो सकते हैं, चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़े, किसी को भी हो सकता है। ये किसी को स्पेयर नहीं करता कि ये सिर्फ जवानों को होगा या बच्चों को होगा या बूढ़े को होगा। फिर इसी तरह RSV उसको कहते हैं, ये इसकी एब्रीवेशन है रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस। इससे आप बड़ी टिपिकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नहीं, RSV उसको कहते हैं, लेकिन उसकी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि R से रेस्पिरेटरी, S से सिंसेशियल वायरस, V से वायरस। ये आमतौर पर बच्चों पर अटैक करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 माह से लेकर 2 माह से 1 माह से लेकर 5-6 साल की उम्र तक के बच्चों को इन पर ये ज़्यादा अटैक करते हैं। फिर एक जो वायरस, पहले तो 2020 से कबल बुक्स में तो कोविड वायरस का नाम मौजूद था, लेकिन इसको लोग बेज़रर वायरस ही समझते थे। इसने आकर फिर दुनिया को एक ऐसी वबा में मुब्तला किया। तो ये भी एक निमोनिया का, इसकी वजह से भी निमोनिया होता है। और जो जब कोविड था तो जो उसमें जो डेथ की जो वजह बनती थी वो निमोनिया ही बनता था उसका, कि वो फिर। अभी डॉक्टर साहब के पास थोड़ा सा इनका नॉलेज भी, एक्सपीरियंस ले लें। ये जो हिफाजती तदाबीर होती हैं कि निमोनिया से बचाव के लिए, कि बच्चों को निमोनिया से बचाना है, बड़ों को बचाना है। जैसे आजकल ये जो फोग है, आज तो छुट्टी थी लाहौर में ड्यू टू फोग, बल्कि फोग नहीं, स्मोग की वजह से थी। कि ये भी एक बहुत बड़ी एहतियाती तदाबीर है कि मसलन क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो आजकल हालात, जो मौसम जा रहा है स्मोक का, उसमें थोड़ा सा एहतियात कर ले, बच्चे ज्यादा अर्ली मॉर्निंग ना निकलें। नहीं, और बड़े जो बाहर निकले में तो वो क्या करें, मास्क वगैरह लगाए। हाँ, ये बात वही बताने लगे, मास्क हाँ जो है वो कंपल्सरी है, एसेंशियल है, जरूरी है कि जो लोग भी घर से निकले वो मास्क लगाएं। और हिफाजती इकदामात के लिए क्या यूज करें, ग्लासेस भी यूज करें, ताकि आप इनसे बचे रहें, स्मोक से। क्योंकि स्मोक अगर गले में अंदर जाती है, अगर आप नहीं पहनते तो फिर क्या होगा, जाके गले में इरिटेशन होगी, और उसके बाद फिर आप फंसते फंसते वायरस जो है, ज़रा स्मोक में केमिकल, धुआं, जहरीले धुएं, वो सारे अंदर जाएंगे तो फिर दमा भी हो सकता है, टीबी भी हो सकती, डेंगू भी हो सकता है। जैसे जैसे ये वायरस और बैक्टीरियल, फंगल जो भी काबू कर गया तो फंस गए आप। तो इसके अलावा और जैसे ये आप बताएं डॉक्टर साहब कि इसमें हिफाजती इकदाम के तौर पे अपने बच्चों को, खवातीन को, ये बड़ी अच्छी 2 बातें डॉक्टर साहब ने बताई कि एक तो मास्क जरूरी है, दूसरा इन्होंने कहा कि चश्मा जरूरी है। जी सर, और खाने पीने में हाँ यखनी जरूर लेनी चाहिए। हाँ, वो तो आप लेती हैं ना, आप तो कहेंगे जी, ड्राई फ्रूट लेना चाहिए। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड ये भी लेने चाहिए। नहीं, ये कहें मैं कि शायद ये कह रही लेने चाहिए, ये नहीं लेने चाहिए। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, हिफाजती तदाबीर यही है कि आप ये जो गंदे ऑयल से फिश तलते हैं इनसे परहेज करें। ये जो शवारमे हैं गंदे, ये शवारमा, बर्गर, हेल्दी डाइट लें, पिज्जा और ये चिप्स जो फ्राई करते हैं, ये समोसे, ये इन चीजों से, और इसमें कुछ इजाफा करें कि जो फ्राई चीजों में और क्या क्या होती हैं।
जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, अपने बच्चों को समस्याओं से अवॉइड करें? समस्या एक होगी, ये सर एक ही जुमला काफी कि तली हुई चीजें तली हुई बाजार से फ्राइड तली- फिश के तली- फ्राइड फिश के नहीं बाजार से इसमें कोई- ऐसा ना करें आप, चूंकि तली हुई चीजें अगर अच्छी, मतलब एक अच्छे साफ सुथरे ऑयल में तली हुई कोई चीज है तो वो कदरे बेहतर होगी बजाय इसके कि गंदे ऑयल में तली हुई है। जैसे ये हमारे यहाँ फिश भी मैंने देखा है कि 8-8 दिन उसी उसी ऑयल में oil में तलते हैं, तो वो तो फिर बीमारी है, जहर है निरा। तो बाहर की चीजों से इग्नोर करें, हाँ, जंक घर फूड में से- हाँ जी, घर का खाना घर का खाना खाएं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और घर में Fruits, पका हुआ खाना हाँ जी। खाएं, सैलड का यूज सैलेड का यूज करें। एक और हरी चीज आप बोल रहे हैं कि इस मौसम में अक्सर जी, मैं जो वो तो बीमारियां आपको- आती हैं उसमें पानी की कमी, पानी की मैं पानी का समझता हूँ। इस्तेमाल जो है तो वो पानी का करें। और intake मैं बढ़ाएं, डॉक्टर साहब के पास ये कि इस मौसम में एक तो अपने आप को गर्म कपड़े भी इस्तेमाल करें, सर्दी से भी बचें, हाँ। क्योंकि जरूरत से ज्यादा जो ठंड है वो भी निमोनिया का एक काज बन जाती है। फिर हाथ अपने धोएं, बार जब बार। बाहर से घर आते हैं, ऑफिस जाते हैं, या जिस जगह भी आपने स्टे करना है वहां पर हाथ वगैरह जरूरी धोकर है, बैठे। बेहतर, जबरदस्त, बहुत फिर अच्छा। उसके अलावा जिस आदमी को निमोनिया हो गया है, क्योंकि ये पहले सवाल आपने मुझसे किया था, फिर आप इधर सवाल ले गए थे कि ये क्या एक शख्स से दूसरे की तरफ हाँ, जाता है, वो रह गया था। तो वो ये है कि बिल्कुल ये फैलता है एक आदमी से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये वबा की शक्ल इख्तियार करता है। वो हिफाजती इकदाम में यही है कि जब वो अपने थूक फेंकता है, या अगर उसका बलगम निकलता है, या कोई अगर उसको फ्लू की शिकायत है, नाक से पानी, तो वो जो टिश्यू है या जिस चीज़ को वो इस्तेमाल करता है उसको किसी ऐसे जगह रखा जाए या उसको डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि उसको आम पब्लिक प्लेस पर ना फेंकें। और उसके जो चीज़ें हैं, टॉवल है या उसके जो जिस वो गिलास में separate कर देना चाहिए। पानी पी रहा है तो बाहर उसका है कि अगर separate फ्लू से रखें। बहुत ज्यादा हाँ, उसका उसको अखराज है सेपरेट रखें। तो वो तो दूसरे को लगेगा। और थोड़ा सा जैसे कोविड के दिनों में भी था कि जी हाँ। सोशल डिस्टेंस भी रखें। हाँ, तो अगर वो उसके साथ बात करनी जरूरी है, जब डॉक्टर और पेशेंट आपस में बात करते हैं तो उसका थोड़ा सा चेहरा दूसरी तरफ कर देता है, बिल्कुल ही अगर वो देखिए, सांस खांसने ले और छींकने वो से जो- उसकी तरफ ना जाए, इसलिए उसके जरा चेहरे का रुख भी थोड़ा सा दूसरी साइड पर होना सही। चाहिए। तो तो इसके साथ साथ फिर ये है कि ठंडे पानी से इज्तनाब करें। दिन में ग्रीन टी 1-2 दफा, नॉर्मल आदमी की मैं अभी बात करता हूँ कि वो पिए। हाँ, फिर इसके यानी लिए कि ये तो इसमें आ गई ना ये कि फास्टी इकदाम है, ये होम रेमेडी भी कह सकते हैं, फास्टी इकदाम खुराक भी आगे ये के डाइट में भी है, ठीक है, आप डाइट भी कह सकते हैं। और खुराक कौन कौन सी लेनी चाहिए इसमें कि आप बच के रहें? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि कावा, कि ये भी रूटीन की अपनी फैमिली में पिलाएं, और इसमें कौन विटामिन सी सी का इस्तेमाल करें, विटामिन सी लेमन का- का इस्तेमाल करें, लेकिन ये जरा बताएं ना जरा। गर्म पानी में इस्तेमाल करें, आजकल ठंडे पानी में इस्तेमाल गर्म करें। पानी में लेमन जूस का यूज करें, गर्म लेमन पानी पानी, हाँ, और बस यानी इन्हीं कि चीजों काबुल से में भी लेमन विटामिन यूज सी, कर लें आप। लेमन का ज्यादा इस्तेमाल करें, सैलेड में कर लें, किसी भी तरह से लेमन का इस्तेमाल अच्छा, और इसके अलावा जी सर, हनी भी अच्छा है। तो हनी तो हनी, कमाल है जी। जी, ये जी। ये आपने काली मिर्च, ये हनी। आज के प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात है कि नमोनिया में शहद जो है जी। ये अगर बच्चों को भी गर्म पानी जी, में दिया बहुत जाए, अच्छा है। बड़ों को भी दिया जी। जाए तो वेन्स को आसान करता है, नरम करता सर है। ज्यादा बेचैन बच्चे आ रहे हैं क्लिनिक पे। अच्छा, निमोनिया की एक और बड़ी अलामत होती है डॉक्टर साहिबा कि खासकर मैंने बच्चों में देखा है कि उनकी अगर चेस्ट चेक की जाए तो सर नोज फ्लैपिंग होती है, आ, जहाँ घड़ा वो तो- बनता हाँ, है। वो एक अलग इशू है, लेकिन खड़खड़ाहट जो होती है जिस पे उनकी। बैठ के वो जैसे आरे की आवाज आ हाँ, रही है ना, खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है, स्टेथोस्कोप से चेक करने से तो उनको वो तो महसूस नहीं, दूर होगा। से उसके नजर बगैर आती भी है। दूर से भी आ रही स्टेथ ना भी होती है। यूज करें तो दूर से आवाज आ दूर रही से भी होती है आती कि है। रेशा वेन्स में बिल्कुल भरी ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज हुई है। हत्ता कि उसी स्टेज पे है तो जी। फेस भी उनका ये नीला होता नीले हो है। जाते हैं। तो उसमें एक होम्योपैथी की दवाई बड़ी कमाल की है, आप यूज करती होंगी। सर एंटम टार्ट। हाँ, जी। वो बताने लगी एंटम टार्ट। जी जी। एंटमोनियम टार्ट है कि ऐसी सूरत में वो दवाई एक मोजजे की सूरत में काम आती है। वैसे तो इसका अगर स्टार्ट अगर हो
जैसे एक आदमी को पता चला है कि उसको इन्फेक्शन शुरू हो गई है तो फिर एकोनाइट बेस्ट तो होगा। एकोनाइट तो वो शुरू में अगर ले तो जो दुनिया जी, जी। तिब्ब की बादशाह जी बेताज मेडिसिन है तो फिर एकोनाइट बेस्ट है। सर सबसे पहले ट्यूबर जरूर लेनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर पहले तो एकोनाइट लेंगे ना जी, उसके बाद ही ट्यूबर का दूसरा जी, नंबर आएगा। जी। ट्यूबर पहले नंबर पे तो नहीं आती। जी सडनली कोई प्रॉब्लम आती ट्यूबर है तो तो वैसे एकोनाइट बेस्ट है। कह ले एहतियाती मेडिसिन भी है जी। क्या प्रोटीन में भी ले सकते हैं। वो बिल्कुल क्या एकोनाइट से पहले ट्यूबर सही रहती है? अगर बिल्कुल उसकी दो कंडीशंस हैं, सही रहती है। अगर उसको आप एज ए प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं ताकि आइंदा आप उससे महफूज रहें तो ट्यूबर 1M में मस्ट है। अच्छा, इसकी स्टेजेस क्या होती है निमोनिया की? इसकी 4 स्टेजेस जल्दी मेरे पास 4 टाइम कम स्टेजेस हैं। पहली तो होती है कंजेशन होती है, छाती में जकड़न वो महसूस करते हैं। एक, फिर उसके बाद आ जाती है रेड एपेटाइजेशन, नंबर 2, फिर आ जाते ग्रे एपेटाइजेशन नंबर 3, और रेजोल्यूशन। नंबर 4 यानी कि स्टेजेस 4 स्टेजेस। इसमें कितने लोग जो हैं वो बच जाते हैं निमोनिया में, क्योरेबल है? सर अगर वक्त पे सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो मेरे ख्याल में तो सारे बच जाते हैं। अच्छा, नहीं बच्चे अगर छोटे बच्चे जी, हैं तो छोटे उनको बच्चों भी के अच्छा लिए- ट्रीटमेंट जी, मिले। बिल्कुल। यानी कि बहुत ज्यादा ये जी, सर। खतरनाक डेंजरस बीमारी जी, जी, सर। डेंजरस है लेकिन उस हद तक नहीं जी है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर अगली स्टेज पर आप फौरन डॉक्टर्स जी। के पास आ जाते हैं तो 100% रिजल्ट जी, है। बिल्कुल। लेकिन बाज़ औक़ात ये मैं कोविड के एग्जांपल दूंगा, उस वक्त जो डेथ रेट था हमारा 5.72%, इसको आप 6% कह सकते हैं। ये डेथ रेट था पाकिस्तान में। अच्छा, जी जी, तो ये बड़ा सीरियस भी होता है, फैटल भी होता है, जानलेवा मर्ज है अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए। अगर इसके जैसे जैसे पुराना होगा फिर ये खतरनाक भी हो जी जाएगा। होता है। इसके अब अगर आपके साइड इफेक्ट्स, मैं इस तरह इनको बयान करूंगा कि इसकी वजह से जो स्ट्रेस है ना इंसान के हार्ट पर पड़ता है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो पूरी तरह ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, क्योंकि अदरवाइज में म्यूकस और पस ये इकट्ठे हो जाते हैं तो उस पर स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है और हार्ट फेलियर का भी होता है। और अगर बिल्कुल ही ज़्यादा सीवियर उसके अटैक और निमोनिया का तो अजमा का भी उसके बाद उसके साइड इफेक्ट में अजमा पैदा होता है। निमोनिया में अस्थमा कौन पैदा कौन होता सी है। दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं आप थारोली? सिम्टम, एक तो हमने सिम्टम बताया कि जी खरखराहट है, आवाज आती है, इसके अलावा और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? जैसे स्टार्ट है अगर तो आप एकोनाइट से कर लें, फिर ट्यूबर है, वो ट्यूबर है। हिपासी भी है, और अगर ड्राई है एज अ तो वैक्सीनेशन भी जी यूज सर करते ड्राइनेस आ रही है तो ब्रायोनिया। हैं। जी आप हाँ जी, अगर ड्राई कफ है तो फिर ब्रायोनिया। और नहीं, ड्राई कफ का निमोनिया में ऐसा होता ही नहीं है। आप वो कफ पे चली गई ना, अब तो निमोनिया पे आ जाए। अच्छा अच्छा, निमोनिया में तो सारा रेशे भरा होता है, उसमें एंटम टार्ट आपका जिक्र करें, उसमें आप ब्रायोनिया का जिक्र करें, बेला जो है वो उधर जाती है। सर बलगम के बावजूद सांस में ड्राइनेस होती है। जी, तो मुश्किल से ये 5-7 अद्वियात हैं जो निमोनिया में काम आती हैं। तो नाजरीन, आपने आज का टॉपिक देखा निमोनिया। मेरे मुअज़्ज़ज़ होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने बड़ी डिटेल के साथ निमोनिया के बारे में बात की, इसकी अद्वियात के बारे में बात की, कॉजेज़ के बारे में, परहेज़ के बारे में, हिफाज़ती इक़दाम के बारे में। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना, अपने गिरदोनवा के दोस्तों का, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। निमोनिया से बचाव के लिए हिफाज़ती इक़दाम ज़रूर कीजिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, बाहर निकलने से पहले स्मोक के दिनों में ऐनक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारे साथ राब्ता में रहिएगा। अगर आप हमें आज के इस प्रोग्राम के लिए राय देना चाहें तो हमारा नंबर है 0333-422-9502, 0333-422-9502। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।